So two industrial towns, Jayanagar and Ramnagar, about 15 kilometers apart, are similar in land area, population, ethnic diversity, per capita income. Jagdeep Singh owns a bakery named Lee Bagate at Jayanagar. He specializes in croissant, masala bread, and whole wheat bread. Eggless cake are also a favorite. Among the four bakeries in Jayanagar, Jagdeep's bakery, with the market share of 30%, is second only to the oldest Lee Crescent Bakery house, whose market share is 40%. Lee Crescent commands a loyal customer base and does not offer eggless varieties. ठीक है, ये eggless variety भी देता है. Jagdeep has decided to open a branch in Ramnagar. Which of the following facts about Ramnagar will best support his decision? ठीक है. Before starting his own bakery, uh, Jagdeep was supplying bread to the most bakeries in Ramnagar. 3% of Lebagate current revenue comes from Ramnagar. Le Crescent Ramnagar branch struggle with market share of 10%. Jagdeep has managed to acquire a big space in Ramnagar at a nominal rent. Ramnagar is served by four bakeries, with the two largest bakeries having a share of 55% and 25% respectively. ये बताओ कि इसमें से कौन सा बेस्ट ऐसा इंफॉर्मेशन है which supports Jagdeep's decision to open a branch in Ramnagar. So B. 3% of Lee Bagate current revenue comes from Ramnagar. B. और B सबको लग रहा है सही? जल्दी बताओ. यस सर, बी लग रहा है इसमें तो. क्योंकि ऑफ कोर्स जब अगर अभी 3% आता है और दो बड़े प्लेयर जो है 55 एंड 25% है, नहीं वो तो यहाँ पे ये अलग इन्फॉर्मेशन है ना. वी कैन नॉट मिक्स दिस इन्फॉर्मेशन. दिस इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली सजेस्ट कि वहां पे जाके ओपन कर सकता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर इन्फॉर्मेशन. Jagdeep wishes to open a 100% eggless bakery, eggless branch in Ramnagar. To explore feasibility, he collected the following facts. Eggless product accounts for 30% of Liberty sales. At least 20% of all bakery sales in Ramnagar is from eggless product. At least 20% of all bakery sales in Ramnagar is from eggless products. The eggless variety of Libogate contain minute traces of egg. Libogate currently make 3% of its revenue from Ramnagar customers, and all of it comes from eggless products. Le Crescent Ramnagar branch struggle with the market share of 10%. ऊपर की information from the combinations below, in the decreasing order of effectiveness, choose the one best support of Jagdeep decision. ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा होगा. तो सबसे 100% एगलेस ब्रांच खोलना चाहता है, तो इसमें एक तो इसका 3% ऑफ रेवेन्यू. सर थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं बिल्कुल ही. एगलेस वैरायटी कंटेंट्स माइन्यूट, ये नहीं होगा ना. हाँ, तो इसको हम मतलब हटा के बाकी ऑप्शंस देख सकते हैं हाँ, कि ये तो नहीं होगा. एंड 5 भी इररिलेवेंट ही है इस केस में. 5 irrelevant है. Le Crescent Ramnagar branch struggles with the market share of 10%. ये क्यों वो है irrelevant है? क्योंकि अब वो डिसाइड तो कर लिया कि जगदीप खोलेगा ही, उसको बस ये कि 100% एगलेस ब्रांच खोलना है, तो मतलब उस डिसीजन को सपोर्ट चाहिए. बट यहाँ पे ऊपर बताया है ना कि जो लेक्रोसेंट तो नॉनवेज भी बेचता है ना, मतलब वो एगलेस तो हमेशा नहीं बेचता, उसकी तो नॉनवेज का भी है नहीं, जो इसलिए. ये ले क्रोसेंट रामनगर ब्रांच, ले क्रोसेंट कौन सा है? उसका कॉम्पिटिटर है ना. हाँ सर. एंड वो एगलेस वैरायटी नहीं ऑफर करता.
तो अगर वो एगलेस वैरायटी नहीं करता है और एक शहर में उसको मतलब ऑलमोस्ट 40% का वो है और दूसरे शहर में 10% हो सकता है, तो दूसरे शहर में लोग इसके पास इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज दूसरे शहर में एगलेस के वो ज्यादा है कस्टमर्स। तो इस 5 वाले को बिल्कुल नेगलेक्ट कैसे कर सकती हो तुम? मेरी बात समझ रहे हो क्या ओके। कह रही हूँ? है ना? हाँ। मतलब उसको मार्केट शेयर अब 10% है। दैट मीन्स कि वो एगलेस नहीं बेच रहा है, तो हो सकता है इसलिए वजह से कम हो। ठीक है, तो हमें 5 को इग्नोर नहीं करना चाहिए आइडियली। ठीक है, अब लेकिन ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस में इसको अब इग्नोर ना करें और सीधा 1 पे रखें, मतलब फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ये करना है ना, तो ये भी हाँ। रखा जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर तब ये है तो बेसिकली 2 और 4 का ये आता है कि इसमें से कौन सा बेस्ट होगा। तो 2 और 4 तो चाहिए ही, बट 5 से ज्यादा शायद 1 कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि लबकेट के खुद के सेल्स भी 30% एगलेस का ही होता है। हाँ सर, मेरे को भी यही लगता है। द एगलेस प्रोडक्ट्स अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ लिवर, ये 1 को तुम इम्पोर्टेंस देना चाहते हो? यस सर, तो मतलब उनका एक तरीके से लेबरगेट का ट्रेडमार्क ही है कि उनका एगलेस प्रोडक्ट है, शायद बाकी कोई दे नहीं रहा है उनकी क्वालिटी जितना। तो ये मतलब तो उनका लेकिन अपना। दोनों केस में 1 जो है, तीनों केस में लास्ट ऑप्शन है ना। हाँ। हाँ सर, पर जब ये सी वाला ऑप्शन देखते हैं ना, जिसमें हम 3% का रेवेन्यू हम तो कमा 4 रहे एंड हैं। 1 दोनों एक ही ऑप्शन में चाहिए, और 2 तो टू चाहिए फोर ही वन नहीं। हाँ, 241 सबसे बेस्ट लग रहा है। At least 20% of bakery sales in Ramnagar is from all bakery sales. तो 20% ही तो है। मतलब आप किसी शहर में 20% और 80%, 20% एगलेस है और ये विथ एग है, तो हम इधर में क्यों ना जाए? वाई वी शुड ओपन ओनली 20% वाले में? वो तो और एटलीस्ट है ये जो ना। 4 वाला है, हाँ एटलीस्ट है ऑफ कोर्स। अच्छा हाँ, हाँ। तो शायद उसका है कि अगर मैंने 100% एगलेस ब्रांच रखा तो वो एगलेस प्रोडक्ट्स मेरे इससे लेंगे ना वो लोग, क्योंकि वैरायटी भी उतनी होगी फिर। तो ज्यादा चांस है क्या, शायद रामनगर में कोई दे ही नहीं रहा है उतना वैरायटी और उतना 100% बेकरी वाला, सॉरी 100% एगलेस वाला। तो बिना उतना एक्सक्लूसिविटी की भी अगर 20% एगलेस प्रोडक्ट्स को आ रहा है, तो मैं अगर 100% एगलेस वाला खोल दूंगा तो फायदा ही होगा ना। सही बात है। तो 2, 4, 1 ऐसा कहना चाह रहा हाँ हूँ। और अगर 5 के साथ जाते तो वी वुड हैव गॉन विथ 5-1। अगर 5 वाला लेके चलते तो 5-2। अच्छा, 5 को इग्नोर करना इज बेटर है, सर, क्योंकि एक और चीज है कि 5 को हम इसलिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि वो जो दूसरी बेकरी है वो नॉनवेज और वेज में से सिर्फ नॉनवेज बेच रही है। वो वेज भी बेच रही है, नॉनवेज भी बेच रही है, दोनों बेच रही है। ठीक है, लेट्स गो विथ 2-4-1। क्या है इसका आंसर, क्या है? वही सी है। सी है। सी है ना? हाँ, क्योंकि इसका इसका वी कैन नॉट फिक्स ना कि इसका अगर मार्केट शेयर कम है तो इसी वजह से है क्योंकि ये एगलेस नहीं बेचता। ये भी तो हो सकता है कि जो इन लोगों का मार्केट शेयर है दे आर इक्वली गुड और बेटर देन देम, है ना? तो ये एज्यूम करना कि ला क्रोसेंटे भी रामनगर में अच्छा ही करना चाहिए था, just because they are not प्रोवाइडिंग एनी लेस, इसी वजह से केवल 10% है, ये एजम्पशन हो जाएगा। तो इसलिए 5 को निगलेक्ट करें। ठीक है, ये 2-4-1 होगा। ठीक है, जरा सा 1 मिनट होल्ड करो। ठीक है, तो अब अगला पे आते हैं। फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, जगदीप हैज लर्न दैट अमेरिकन्स यूज देयर ओन ओवन टू बेक रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स sold by some bakeries. Americans use their own oven to bake. Americans कौन है? Americans कंपटीटर का नाम तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा बोला तो नहीं है हाँ, शायद। मतलब वो 50 और 25% वाले अमेरिकन तो नहीं है ना? अच्छा, वो तो वैसे भी एक क्वेश्चन का वो था, फैक्ट था, तो उसको ले नहीं सकते वैसे। ठीक है, हाँ। तो दिस idea is apparently catching up in Indian metros as well. Jagdeep wants to try out
in his bakery, he has gathered the following facts. US bakeries that also sells ready-to-bake products earn higher revenue compared to those do not. Around 7% of Jagdeep's regular customers own baking oven at their home. The sale of baking oven in India is forecasted to increase by 12% every year for the next 3 years. 50% of Jagdeep's regular customers are full-time working couples. In Indian metros, ready-to-bake products give higher profit margin compared to the finished product. Select the best of the following sequence of the above fact, descending order of effectiveness to support the. तो इसमें अब सबसे ज्यादा इफेक्टिव या सबसे कम इफेक्टिव अगर हम इन दोनों में से किसी को आइडेंटिफाई करें तो कौन सा होगा? सर 7% वाला 7% ऑफ जगदीप्स रेगुलर कस्टमर ओन, हालांकि बहुत कम है बट स्टिल इट्स मेक्स गुड चॉइस। लेकिन ये भी तो है ना ये वाला कि द सेल ऑफ बेकिंग ओवन इन इंडिया इज फोरकास्टेड टू इंक्रीज बाय 12% एवरी ईयर। तो हाँ मैं भी इसमें कंफ्यूज्ड हूँ एक्चुअली। ठीक है, हम तीनों देख लेते हैं ना। वन को तो नहीं रखना चाहिए कि यूएस बेकरीज आल्सो सेल रेडी टू बेक अर्न हायर रेवेन्यू, ये तो लीस्ट इफेक्टिव होगा। तो हमें लगता है कि वन जो है 4 के साथ ज्यादा वो अटैच रहना चाहिए। हमें लगता है ये वाला ऑप्शन वो होगा 2 3 5 1 4। ये देखो तो। हाँ शायद यही है सर। एक हाँ, सेकंड। क्योंकि यहाँ पे रीच करने का ना सही तरीका ये था कि हम लीस्ट इफेक्टिव वाला आइडेंटिफाई किया हमने। तो जैसे ये वाला मुझे लगा लीस्ट है, मतलब ये लिस्ट हो सकता है, ये भी लिस्ट हो सकता है कि दैट डज नॉट मतलब सेज की वो रेडी टू बेक वाला ज्यादा बिकेगा। तो इन दोनों को नीचे रखना है। तो 1 और 4 मुझे यहीं दिखा है एक साथ लिस्ट में, और बाकी मुझे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे तब वो किस भी अरेंजमेंट में हो यही रहेगा। एंड एक्चुअली इट ऑल्सो कन्विंस्ड मी कि इसके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, तो ये सबसे ज्यादा वो होगा पोटेंशियल स्टेटमेंट होगा जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। बाकी सब तो स्पेकुलेशन है। हो सकता है कि इंडिया में ब्रेकिंग बेकिंग ओवन जो है उस शहर में बिक ही नहीं रहा है, तो वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट ये स्टेटमेंट को हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि वो 7% तो खरीदने ही लगेंगे। तो इस वजह से डी होना चाहिए। क्या सर स्वप्निल? मेरे पास एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नहीं मतलब दूसरा ही क्वेश्चन है वो एक सेकंड 2020 का है गैस। एक सेकंड। ये 2020 का ही तो है ये भी। स्वप्निल समझ में आया तुम्हें? यस सर आ गया। मेरे इसमें एक दो ही सही हुए थे, मतलब इसमें ही डाउट हो रहा था। ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें ही कंफ्यूजन हो जाती है। ये मैं मानता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, मतलब डोंट गो हम्म। फॉर 100% एक्यूरेसी एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चन। सीधी बात है, आप हाँ। पूरा का पूरा क्वेश्चन करो, 21-22 क्वेश्चन, और 60+ की एक्यूरेसी भी आप आ जाती है आपकी। और वो हम्म। तभी आएगी व्हेन यू डू ऑल द क्वेश्चंस एक बार और दोबारा रिपीट भी करोगे तब। ठीक है, दोबारा रिपीट में इफ यू एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या कैच रहा होगा लास्ट टाइम जो हमने गलत किया, तो वो ज्यादा सही रहेगा। बताओ जल्दी कौन सा वाला क्वेश्चन सर द स्मॉल शॉप वाला है? क्वेश्चन नंबर तो बताओ। क्वेश्चन नंबर एक सेकंड 36 है क्या? 36 कैसे हो नहीं सकता? नहीं 36 नहीं, एक सेकंड। स्मॉल शॉप यहाँ है मेरी, व्हाट है स्मॉल हाँ शॉप? ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ये नहीं, 10th है हाँ ये। मतलब इसका मतलब स्मॉल शॉप का फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है, द ये। स्मॉल शॉप selling computers peripheral is the only one of its kind in the remote village of तुरुंक। ये बाहुबली से लेके आया है लग रहा है। अच्छा, कितना सही रहता है कई बार यू गेट टू नो द रियल टाइम बिजनेस सिचुएशन और ऐसे सोच पे बात होती है, तो डिसीजन मेकिंग का एक्सरसाइज करना आपके नॉट ओनली जैट प्रिपरेशन, मतलब लॉन्ग टर्म में
मेक यू एमबीए, मेक यू एम ग्रेट, मतलब ग्रेट नहीं, अच्छा एमबीए बनाने के लिए भी यूजफुल है। तो एनीवे चलो, ये only one of its kind in the remote villages because online purchase takes 2 weeks or more time to arrive. The small shop is a quick shop for buying items such as pen drives, USB cable. Besides selling computer peripherals, the small shop also undertakes the repair of out of the warranty products. Thus, the small shop, which earlier recorded an annual increase in approximately 12% revenue, 12%, has been stagnating as 4% for the last 3 years, during which e-commerce sidelined brick and mortar outlets. The shop is struggling to increase profitability. In general, the small shop has been offering a discount of MRP to compete with the e-commerce prices. Which of the following is the best reason for the small shop not to reduce the current discount uh, offered to the customer? ये बोलता है कि the small shop has been offering, अच्छा ये ऑफर कर रहा था डिस्काउंट, लेकिन अभी क्या है कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के ऑर्डर में वो डिस्काउंट कम ना करे, इसके लिए सपोर्ट देना है तुम्हें। बेस्ट रीजन। सो इवन दो ई कॉमर्स ऑफर्स अ ग्रेट रेंज ऑफ चॉइसेस, रिड्यूस करेगा डिस्काउंट, मतलब वो डिस्काउंट को कम कर रहा है, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ मैं समझाता हूँ, स्मॉल शॉप ने ई कॉमर्स के चैलेंज को टैकल करने के लिए मान लो 20% का डिस्काउंट देना शुरू कर दिया एमआरपी पे, ठीक है। अब लेकिन इसके बावजूद अभी 4% ग्रोथ पे रह गई है, रेवेन्यू जो है 4% ग्रोथ पे रह गई है। तो अब वो चाहता है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे आइडियल क्या दिखता है कि आप डिस्काउंट कम कर दो तो वो उतना प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बोलता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, रीजन नॉट स्टेटमेंट, रीजन जो है वो ये सजेस्ट करता है कि डिस्काउंट मत कम करो, डिस्काउंट दो अभी भी वो जितना दे रहे हो। तुम समझ रहे हो अभी? हाँ समझ रही मुझे हूँ लगता है हाँ। कि अगर क्वेश्चन समझ गए तो आई थिंक इट विल बी इजी क्वेश्चन। इवन दो ई कॉमर्स ऑफर्स अ ग्रेट रेंज ऑफ चॉइसेस, villagers prefer buying readily available products from the small shop. A new resident who earlier worked in computer hardware industry is contemplating starting a business on Turkey. A large fading sign prominently placed behind the shop cash counter reads, "In business and in life, always be fair." Wow. To cover insurance cost, e-commerce has begun charging a delivery fee from last year. Uh, Recently, customers from a nearby village also starting shopping at small shop for low-end peripherals, accounting the for around 3% of shop's total revenue. तो अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा जो है जो बोलता है कि डिस्काउंट कम मत करो। बताओ तो किसी का, तुम लोग में से कोई भी बताओ कि क्या बोल सकते हो। गिव मी एन ऑप्शन जो ये सजेस्ट सर करता है। मुझे तो इसका डी लग रहा था। डी क्या? डी ऑप्शन लग रहा था मुझे तो कि डी ने तो बोला कि डिलीवरी फी लगाना शुरू कर दिया ई कॉमर्स। तो अब तभी तो सर वो उसको डिस्काउंट नहीं हटाना चाहिए कि मतलब वो उसकी सेल्स बढ़ेगी ना उससे। हाँ, लेकिन ये भी बोल रहा है ना कि अगर वो प्राइस बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हम भी बढ़ा लें। तो हम फिर दोनों, उसके बाद तो फिर सर ए लग रहा था मुझे। ये लग रहा था नहीं, मैं काट नहीं रहा हूँ पूरी तरह से डी तुमको। आई एम फाइंडिंग कि वो बेस्ट रीजन है। हम्म। तो वो भी एक रीजन है डी, तुम सही कह रहे हो कि थोड़ा सा उसने बढ़ाया है हम्म। प्राइस, थोड़ा सा हम भी बढ़ा लेते हैं तो कम कर ही दिया। हम ये बोल रहे हैं कि हम ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। बोल रहे हो कि अगर उसने बढ़ाया है तो हमें और कम ही रखना चाहिए, हमारी सेल बढ़ जाएगी। हाँ तुम समझ रहे हो? तो ऐसा दोनों ही बात सही है, बट बेस्ट रीजन क्या हो सकता है? सर ए ही लग रहा है, क्योंकि आई थिंक इसमें ये भी बोला है कि विलेजेस प्रेफर करते हैं कि रेडीली अवेलेबल है, तो अगर अचानक से मिलने वाला डिस्काउंट कम होगा तो वो भी शायद थोड़ा मुकर जाएंगे। नहीं, ए में क्या लिखा हुआ है? इवन दो, अच्छा विलेज प्रेफर, तो तुम ये कह रहे हो कि अगर डिस्काउंट कम कर देंगे तो, अच्छा ई वाले में क्या दिक्कत है तुम लोगों को?
सो उसमें मुझे डाउट ये था कि 3% टोटल रेवेन्यू है, तो वो पहले से था या फिर वो कुछ अपने प्रॉफिट के लिए वो मदद करेगा नहीं, नहीं तो करेगा पता नहीं। रिसेंटली लिखा हुआ है ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो रिसेंटली मतलब जब वो कम किया है प्राइस, तब वो आसपास के लोग आने लगे हैं। सर ई होगा, समझ गई, ई होगा। ये होगा ना। हाँ, क्योंकि हाँ मैं रिड्यूस में कंफ्यूज हो गई थी, रिड्यूस और डिस्काउंट में, क्योंकि डिस्काउंट कम करना मेरे को लगा और समझ गई। अरे बताओ बताओ, समझ गई तो एक्सप्लेन करो। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब रिड्यूस, अगर वो रिड्यूस नहीं करेगा अपने प्रोडक्ट्स, मतलब अगर रिड्यूस करता है तो सब आएंगे, पर अगर वो रिड्यूस नहीं भी करता तो कौन आएगा उसके पास? तो वही लोग आएंगे जो उसके उसके पहले से लॉयल रहे हैं। रीसेंट कस्टमर्स इन नियर बाय विलेजेस हैव स्टार्टेड शॉपिंग एट लो एंड पेरिफेरल्स अकाउंटिंग फॉर 3%। एक सेकेंड। सर इसका आंसर वैसे ए है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी अभी उतना डिसाइड करने वाली बात नहीं है। हम्म। अगर ए है तो इस तरह का एक और भी तो ऑप्शन था, नहीं इस तरह का नहीं था। हालांकि ए और ई दोनों ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ए से क्या है तुम्हारा कि अगर नया प्लेयर आ जाएगा तो वो जाहिर सी बात है, वो जब नया कोई प्लेयर आता है तो वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना शुरू करते हैं पहले। अब उस केस में अगर हमारा डिस्काउंट नहीं रहेगा तो जनता बोलेगी भाई नए वाले पे चले जाओ। ठीक है, ए होगा, ए ही होगा। राजेश्वरी बताओ। हाँ सर, ए होगा। हम जान रहे थे तुम कंफ्यूज हो रही हो। हाँ तेरा। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मार्केट एंट्री के टाइम में लोग डिस्काउंट देते हैं मार्केट पेनिट्रेशन के लिए, एवरीबॉडी। और अगर ऑलरेडी अगर वो आ रहा है ना, तो हमें अपने डिस्काउंट को हम कर देंगे, कम कर देंगे, तो जाहिर सी बात है पीपल में मूव टू हिज प्लेस। तो ऑलरेडी एक कंपटीशन के लिए उसने प्राइसेस कम किए थे, अब तो दो कंपटीशन आ जाएगा, तो यू नीड टू कीप द प्राइसेस लो एज पर कंपटीशन। ठीक है।